चल स्टार्ट कर दे। महावीर को 50 नहीं हुआ। Okay. So, hello everyone. I am Vikrant from MIT University, fifth semester. My specialty is in web development, React.js, JavaScript, C++, and data structure and algorithm. So, before starting JavaScript, Anish, is my voice audible? Yes, yes, it was audible. Okay. So before starting the JavaScript, you all must studied about the C, C++, or yeah, C++. So you all have किसी का mic start हो जाएगा. Okay, so before JavaScript, we all know about Java. So जब JavaScript नहीं था तो हम लोग Java यूज करते थे. Java में Java Applet. तो वो एक पुराना टेक्नोलॉजी था जिसके मदद से हम लोग हमारे वेब डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग का फंक्शन देते थे. लेकिन इट वाज रियली बगी. You cannot use it in production based application because it cannot load all the servers and fulfill the demands. So that's why we need a new language. So JavaScript basically is a programming language for the web. It is a interpreted language. So you all know about C++, and you know it is a compiled type language. So there is a difference between compile type and interpreted. So in interpreted, the language will translate line by line. Then it is going to be in the execution mode. But in the compiled based language, the language first completely compiled into a class file in Java, or you can say a machine code, then it will go to the processor to be executed. So basically, in interpreted, it is translated line by line, but in compile based language, it is going to be compiled first, then it is going to be executed. So you are able to understand the difference between JavaScript and C++ now, I guess. Okay. Now, why JavaScript? Now you know a little bit about JavaScript. Now why we use it? So in this slide you can see there is two pictures, one in the right and one on the left. So you might all be thinking that this can be done with the CSS, right? Why we need JavaScript? But the reason is this. I think you all are able to see the social tab. You can see here one new, and in promotion you can see 7 new messages. So this cannot be done by CSS, cascading style sheets. Why? Because CSS does not have the programming functionality. You cannot dynamically update the contents. So you can make the design same as the you can make this type of design in CSS, but you cannot add the programming functionality to that website. So you cannot update the content dynamically, or you cannot add the multimedia animations and pretty much everything you can see. One more example you can see is here. So one more example you can see here, like Twitter. So you know Twitter is a very popular very popular website for the youngsters or popular people like Trump and Narendra Modi and etc. So without JavaScript, Twitter cannot even work. Why? Because in every second, Twitter needs to update its data feed. So it always requests for the new data to update in its feed. So without JavaScript, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन यहाँ पे 20 है, और ये सब चीज डेटाबेस से आ रहा है, ट्विटर का जो डेटाबेस है, तो ये लाइव अपडेट हो रहा है. तो बिना जावास्क्रिप्ट ये अपडेट नहीं हो सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वार्निंग भी है, JavaScript is not available. We detected that JavaScript is disabled in this browser. तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि JavaScript का जरूरत क्या है. अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. तो 1995 में एक नेटस्केप प्रोग्रामर जिनका नाम था ब्रैंडन एच, उन्होंने डेवलप किया था जावास्क्रिप्ट को. तो इट वाज ओरिजिनली नेम्ड मोचा, but it quickly became known as LiveScript, and later, as we all know, it is known as JavaScript. It was the first web scripting language.
सो इसका जरूरत पड़ा आपको जब हमारे नए नए फंक्शनैलिटी आने लगे। जैसे आप इंस्टाग्राम देखते होंगे, वहाँ पे आप लाइव देखते होंगे, चाहे आप वहाँ पे लाइव वीडियो देखते होंगे, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं था हमारे वेबसाइट के लिए। पर जब से जावास्क्रिप्ट आया, ये सारे फंक्शनैलिटी अवेलेबल होने लगे हमारे वेबसाइट्स पे। तो हम लोग इस कोर्स में क्या कवर करेंगे, इस जावास्क्रिप्ट सेक्शन में हम लोग क्या कवर करेंगे? यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स है: डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशंस, फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरे, ऑब्जेक्ट्स, डॉम, बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, then map, filter, reduce function, async, wait, callbacks, and one more thing is promises. So these are all the things we are going to cover. तो आप लोग में से बहुत को लग रहा होगा कि ये पूरा सिलेबस है जावास्क्रिप्ट का। नहीं, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही वास्ट है। मैं पूरा चीज एक दिन में तो क्या, अगर मैं देखा पूरा चीज तो मैं एक महीने में भी नहीं कवर कर सकता हूँ। तो ये हमारे मेन मेन टॉपिक्स है जो आपको इस कोर्स को करने में मदद करेंगे और जिनसे आपको रिएक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको रिएक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ पे करेंगे? तो एक्चुअली एक नोड जेएस नाम का मॉड्यूल है, वो भी आप रख सकते हैं ताकि आपके पास V8 इंजन आ जाए। V8 इंजन बेसिकली कंपाइलर है जो आपके क्रोम में यूज होता है। तो हम लोग ऑफलाइन डाउनलोड करके VS कोड में सेटअप कर सकते हैं। वो हम लोग बाद के सेक्शन में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग के लिए हम लोग अपना ब्राउजर खोलेंगे, क्रोम, फायरफॉक्स, एज कुछ भी खोलेंगे और आपको सीधे कोड पेन पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं codepen.io में जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको लिखना है codepen.io, इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इसमें स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर है तुम्हारा। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे पेन का ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और ये आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसके बाद सेटिंग में जाना है और उसके बाद आपको बिहेवियर में जाना है और सेव ऑटोमेटिकली और ऑटो अपडेटिंग प्रीव्यू, ये दोनों को आपको ऑफ कर देना है क्योंकि ये बिना मतलब का अपने आप अपडेट और सेव करते रहेगा, उससे आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको HTML हाइड कर देना है, CSS को हाइड कर देना है और आपको कंसोल को बड़ा कर लेना है जिससे हम लोग देखेंगे अपना आउटपुट। कंसोल वही जैसा आप C और C++ में देखे तो वैसा ही कंसोल है ये भी। तो ये हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट सेट हो गया है। तो अगर तो ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। कोड पेन पे जाना है, दो सेटिंग्स ऑफ करने और सबको कंप्रेस करके जावास्क्रिप्ट और कंसोल वाले टैब को बाहर निकाल लेना है। सो दिस इज आवर कोडिंग एनवायरनमेंट और यू कैन से IDE, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। सो ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम लोग बेसिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे और कमेंट्स जो कि आपने C++ या C में पढ़ा ही होगा। तो बेसिक फंक्शंस क्यों? तो ये हम लोग को समझने में मदद करेगा, इस कोर्स या इस सेक्शन को समझने में आपको मदद करेगा। तो सबसे पहला है हमारे पास अलर्ट। ये क्या करता है? ये बेसिकली यूजर को अलर्ट देता है ब्राउजर में। तो जैसे आप एथिकल हैकिंग सीख ही रहे होंगे, तो समझ जाइए गौतम आपका PC हैक कर लिया। हे तो PC हैक गौतम। तो हैक होने के बाद आपको ऐसा देगा तो नहीं, बस आप रेफरेंस के लिए समझ लीजिए ऐसा कुछ अलर्ट यूजर को आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हे योर पीसी इज हैक्ड बाय गौतम। सो ये हमारा एक फंक्शन था जो कि जावास्क्रिप्ट समझने में आपको आसानी करेगा। और दूसरा है हमारा प्रॉम्प्ट। तो जैसे आप C++ और C में इनपुट लेते थे, जैसे C में आप स्कैनफ से लेते थे, C++ में Cin से लेते थे, तो ये भी एक मेथड है इनपुट लेने का। ठीक है, तो जैसे मैं आप प्रॉम्प्ट लिखूंगा और इंटर योर नेम। अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आपको एक इनपुट स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हे इंटर योर नेम। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आप इस वैल्यू को सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप C और C++ पे आए हैं तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं सेमी कॉलन क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। बेसिकली जावास्क्रिप्ट बहुत ही फॉरगिवेबल लैंग्वेज है, तो ये उतना ध्यान नहीं देता है, आप ये इग्नोर कर देता है ये सबको। तो आपको या तो लिखें या तो ना लिखें, आपकी मर्जी है। इसमें आपको ये नहीं है कि लिखना ही, और ये एरर थ्रो नहीं करता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं दे भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए आउटपुट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इग्नोर करता है बेसिकली। अब एक और चीज है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग।
जैसा आपका C++ में था सी आउट, सी में था आपका प्रिंट एफ, जावा में था आपका system.print.ln, वैसे ही यहाँ पे आपको console.log है। तो बेसिकली आपका कंसोल में प्रिंट करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कंसोल है, और ये आपके फंक्शन के नाम ही में डेफिनेशन है console.log। बेसिकली कंसोल में लॉग कर देगा वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हे आई एम विक्रांत सिंह। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, ये 3 फंक्शंस तो आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही बेसिक है। तो ये समझने के बाद आप रेडी हैं इस सेक्शन को आगे करने के लिए, और मैं आपको 2 कमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसका कमेंट्स भी C++ जैसा ही है, जैसा आप डबल लाइन करेंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट का मतलब क्या होता है, वैसा लाइन और वैसा टेक्स्ट या वैसा सेंटेंस जो कि कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाता है, सो इट इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। तो ये आप डालते हैं दूसरे प्रोग्रामर के हेल्प के लिए, जैसा कि आपने कोई गिटहब पे अपना कोड अपलोड किया, जैसे टेंशन नहीं लीजिए, गिटहब भी आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में। तो जैसा कि आपने गिटहब पे गिटहब आप मान के चलिए एक डेटाबेस है जहाँ पे आप अपना कोड स्टोर करते हैं, और वो आपका कोड ट्रैक करता है कब कौन से नए अपडेट आया, कौन से, बेसिकली आप समझिए कि वो एक डेटाबेस है। तो अगर आपको दूसरे प्रोग्रामर के हेल्प ले, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, जैसे इन फंक्शन इन फन, ऐसा कुछ फंक्शन आपने बनाया, तो आपको दूसरे प्रोग्रामर को बताना है कि ये फंक्शन क्यों है। तो ये इट इज जस्ट फॉर फन, नॉट फॉर द कंपनी। ये उस प्रोग्रामर को बता देगा कि प्रॉब्लम, मतलब ये फंक्शन किस लिए है, मतलब क्या रीजन है इस फंक्शन का, मतलब मैंने बनाया कि ये सारा डिटेल्स आप ऐसे लिख सकते हैं। और एक और टाइप का कमेंट होता है जिसे हम मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन मतलब कुछ नहीं, आप इसके बीच में कैसे भी लिख सकते हैं। वो जो आपने पहले देखा वो सिंगल लाइन कमेंट था। तो आप मैं श्योर हूँ आपको पता चल गया होगा डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये है हमारे पास डेटा टाइप्स। तो हाँ, जैसे सी और C++ में आपका डेटा टाइप्स था इंट, कैर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, वैसे इसमें जावास्क्रिप्ट में भी है। जैसे अब बुलियन C++ में भी था। तो सबसे पहला डेटा टाइप इसमें नंबर्स। इट कॉन्सेंट्स न्यूमेरिक वैल्यू। तो नंबर्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि नंबर्स में आप क्या नंबर ही स्टोर कीजिएगा, आप उसमें स्ट्रिंग तो स्टोर नहीं कीजिएगा। नंबर फॉर एग्जांपल हो सकता है डेसिमल हो सकता है, फ्लोट टाइप नंबर हो सकता है, नॉर्मल नंबर हो सकता है। पहला डेटा टाइप ये हो गया। दूसरा डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग्स। सो सिंपलेस्ट एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, ये कलेक्शन है वन और मोर कैरेक्टर्स को, जिसे हम लोग रैप कर दी, या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, आप सी पढ़े हैं तो उसमें आपको याद होगा कि हम लोग जब सिंगल यानी एक कैरेक्टर यूज करते थे तो हम लोग सिंगल कोट देते थे, और हम लोग अगर सेंटेंस यूज करते थे, और हम लोग अगर कोई सेंटेंस यूज करते थे तो हम लोग वहाँ पे डबल कोट यूज करते थे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मान लिया आप कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाए, कैर नाम, कैर अल्फा। यहाँ पे अगर आपको सिंगल एक अल्फाबेट स्टोर करना है तो आप ऐसे करते थे सी या C++ में, और अगर आपको एक स्ट्रिंग स्टोर करना था तो आप डबल कोट का यूज करते थे, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये भी फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। आप ये भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, आप ये भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। जावास्क्रिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक डिफरेंट था सी और C++ और जावास्क्रिप्ट में, जिससे मैंने बता दिया। और तीसरा डेटा टाइप है बूलियंस। तो इसका 2 वैल्यू हो सकता है, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। जैसे अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ। तो लेट्स सपोज यू मेड अ वेबसाइट रिगार्डिंग अ पर्सन हाउ मेनी टाइम्स दे लॉग इन और लॉग आउट। सो एक वेबसाइट आपने बनाया जिसे आपने देखना है कि कौन सा पर्सन लॉग इन हुआ है, कौन सा लॉग आउट हुआ है। तो जब वो पर्सन लॉग इन हुआ है तो आप उसका वैल्यू ट्रू कर सकते हैं, ताकि उसका डेटा बेस में दिखाए कि हाँ वो लॉग इन है। लेकिन अगर वो जैसे ही लॉग आउट होता है आप उस वैल्यू को फॉल्स कर सकते हैं, ताकि आपके वेबसाइट को पता चले कि वो पर्सन अभी आपके वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जहाँ आप बुलियंस यूज कर सकते हैं। ये बहुत जगह काम आ सकता है। जैसे आप कोई फॉर लूप चला रहे हैं, अगर आपको कोई वैल्यू चेक करना है, क्या ये वैल्यू आपके एरेज में आया है, तो उसके लिए भी आप बुलियंस यूज कर सकते हैं। फिर आता है एक अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि एक वेरिएबल होता है जो कि इनिशियलाइज नहीं होता है। मतलब सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, उस वेरिएबल को पता ही नहीं है कि वो एक इंटीजर है, वो एक नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है, वो ऐसा वेरिएबल है उसे खुद नहीं पता वो क्या है, तो वो अनडिफाइंड कैटेगरी में आता है।
और हमारा फिफ्थ टाइप का डेटा टाइप है नल। तो नल, और हाँ एक बात याद रखिएगा, नल और जीरो में बहुत ही फर्क है। नल मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो एक टेम्परेचर होता है, जीरो एक नंबर होता है, लेकिन नल मीन्स नथिंग, वॉइड, एम्प्टी। नल मतलब कुछ नहीं, लेकिन जीरो, जीरो नल कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोनों अलग चीज होता है। फिर हमारे पास एक आता है सिंबल। तो एक आइडेंटिफायर है ऑब्जेक्ट्स के लिए, बेसिकली एक आईडी टाइप का, जिससे दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड नहीं हो आपस में, यानी दो ऑब्जेक्ट्स लड़े नहीं कि वो मेरा है वो मेरा, ऐसे दोनों अलग सेपरेटेड है। तो ये हमारी बात हो गई डेटा टाइप्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इट इज अ वे टू रिजर्व सम मेमोरी स्पेस, और यू कैन थिंक अबाउट इट इज अ कंटेनर दैट स्टोर सम इंफॉर्मेशन असाइन टू इट। तो इतना बेसिक जाने का तो जरूरत नहीं है, आप लोग पहले ही से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, लेकिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आप समझ लीजिए, आपके एक बकेट है आपके पास, उसमें आपने कोई मोबाइल चाहे कुछ भी डाला हुआ है, कपड़ा उपड़ा, तो वो जो बकेट है वो आपका वेरिएबल है, और जो आपने उसमें मटेरियल डाला है जैसे क्लोथ डाला है वो आपका वैल्यू है। तो मैं इसे आपको थोड़ा सा कोड करके दिखाऊंगा। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है तीन तरीका, कॉन्स्ट, लेट और वॉर। वॉर सबसे पुराना तरीका है, लेकिन ये दोनों नए आए हैं ये 6 अपडेट में। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट की बात करूंगा। तो ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट में, कॉन्स्ट। उसके बाद ये हमारा ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट को बताया कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं जो कि कांस्टेंट है, यानी एक बार अगर वो असाइन हो गया तो उसे आप उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, लेट्स से नेम। ये आपका हो गया, जिससे आपको जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि एक वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल नेम हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। यहाँ पे नाम लिख दीजिए अपना। तो ये आपका हो गया एक वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन, और हाँ आपने उसे डिफाइन भी कर दिया। तो अब हम इसे कंसोल पे प्रिंट करके देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है विक्रांत, तो एक मेमोरी स्पेस में मेरा ये विक्रांत नाम का स्टोर हो गया है, जिसका रेफरेंस नेम के पास है। और दो और तरीके हैं, एक है लेट, ये बेसिकली लोकल स्कोप होता है, जैसा लोकल वेरिएबल आप पढ़े हैं। ये भी सेम। और एक होता है वॉर, वॉर आप ग्लोबल स्कोप की तरह समझ सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल टाइप, पूरे जावास्क्रिप्ट फाइल में वो वेरिएबल आपका अवेलेबल होगा, लेकिन लेट जहाँ डिफाइन हुआ है वो वहीं पर रहेगा। तो ये तीन तरीका से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बताता हूँ। कॉन्स, it is a keyword used to define a variable that cannot be reassigned. It must initialize at the time of declaration. So इसका दो मतलब है। सबसे पहला कि जो वेरिएबल एक बार असाइन आप उसे को वैल्यू से कर दिए तो उसको बाद में जाके आप फिर से असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। और जब आप इसे डिक्लेयर करेंगे आपको उसी टाइम इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का ये एक रूल है, आप समझ लीजिए। फिर होता है एक लेट कीवर्ड आता है। It is a keyword used to define a variable with restrictive scope, or you can say it is a local scope of that block. ये बेसिकली लोकल वेरिएबल जैसा है, जो ब्लॉक में आपने डिफाइन किया उसी ब्लॉक तक वो रहेगा। फिर आता है एक var, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड है जिससे आप बता सकते हैं जावास्क्रिप्ट को कि ये एक वेरिएबल है, और ये ग्लोबल स्कोप के साथ आता है, तो ये उस जावास्क्रिप्ट फाइल में हर जगह अवेलेबल होगा। तो ये थोड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, तो हम लोग बेसिकली ये दोनों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कॉन्स्ट और लेट, बिकॉज ये नए हैं। तो ये दोनों, और लेट अगर ये दोनों से भी चुनना रहेगा तो मैं कॉन्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये थोड़ा सा सेफ रहता है। आप एक बार डिक्लेयर कर दिए तो आप इसे फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते, तो आपका डेटा प्रिजर्व रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, जब तक आपको डेटा को मॉडिफाई नहीं करना है आप कॉन्स्ट पे जाइए, और अगर डेटा आपको मॉडिफाई करना है बाद में तो लेट यूज कीजिए। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर देम, हाउ टू डिफाइन देम, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यू कैन मेड इन जावास्क्रिप्ट। ये हमारे तीन चीज हो गए। नाउ as in C, C++, Java, Python, there is also some rules to declare variables in JavaScript. So the first one is we should never use reserved keywords as variable name because they are not valid. Reserved keyword मतलब ये आपका const हो गया, ये आपका console हो गया, आपका function हो गया, ये सारे reserved keywords हैं, तो आप इसे नहीं यूज कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं const तो ये आप नहीं कर सकते हैं, आपको एक एरर थ्रो करेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी
मतलब ये बात बोलना चाह रहा है कि आप एक रिजर्व कीवर्ड को नहीं यूज कर सकते हैं। ये पहला रूल था। दूसरा रूल था, ये सी और सी प्लस प्लस का सेम रूल है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विद नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। तो आप अंडरस्कोर के अलावा और कोई चीज से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आप बाद में ऐड कर सकते हैं लेकिन उस टाइम आप नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये हमारा दूसरा रूल है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, सो नेम एंड नेम आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कॉन्स्ट ये जो दो वेरिएबल है ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एचटीएमएल हमारा जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। वो ऐसा लैंग्वेज नहीं है, वो हाइपर टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के रूप में वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन आपका जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो जैसा मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं, विक्रांत अनीस दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो ये हमारा हो गया टूल्स डिक्लेयरिंग वेरिएबल। एंड यहाँ पे वही बेसिक चीज़ है जो मैंने वहाँ बताया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपके चैट इनेबल है तो आप ये आंसर कर सकते हैं, कैन यू रीअसाइन अ कॉन्स्ट वेरिएबल। ये आप सोच लीजिए, और अगर चैट इनेबल है तो उसमें आंसर कर लीजिए, वरना तो आप सबको पता ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर्स भी होते हैं जेएस में, जावास्क्रिप्ट में। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वही कवर करने वाला है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिससे हम लोग एडिशन कहते हैं। ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक से लेना चाह रहा हूँ। मतलब कोई स्टूडेंट अगर नया भी है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट num1 इक्वल्स टू 2 एंड लेट num2 इक्वल्स टू 3। अब एक मैं आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, इसमें num1 प्लस num2। ये बेसिक सा कोड है जो कि आप सबको पता होगा। एडिशन में पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऐसा आप बचपन में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लास 5th में एडमिशन करवा लें। ओके, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा आंसर है। सो बेसिकली एडिशन ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। और जो सेकेंड ऑपरेशन उसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। आप यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर दीजिए तो होगा हमारा सब्ट्रैक्शन। इसका आंसर आप बता दीजिए अगर आपको पता है तो। यहाँ पे -1 आया है। उसी तरीका का आपको एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया था मुझे लगता था मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एक्स से होता है। मुझे कॉलेज में आने के बाद पता चला कि ये जो स्टार का आइकन है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो या जस्ट टू शेयर सम स्टोरी सो द क्लास डू नॉट गेट बोरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू 6 है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। और हमारा एक डिवीजन ऑपरेटर है जिसे आप स्लैश से यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन चेंज द वैल्यू। तो यहाँ पे 3 ÷ 3 1 होता है। सो दिस इज आवर फोर्थ टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये कुछ नया होगा। जिन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है उनके लिए नया होगा। सो इट इज़ अ मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ आप जैसा देख सकते हैं बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो रिमाइंडर वो होता है, जैसे आप 2 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 रिमाइंडर होगा। तो ये भी आप बचपन में पढ़ा होगा। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यही करता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। It will return the remainder of these two numbers. So you can see here one is the remainder. So ये हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए नया और जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है। तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। बेसिकली ये पावर करता है, पावर अप। पावर अप मतलब जैसे
पावर कर देना 2 नंबर से। जैसे मुझे 2 से 2 टू द पावर करना है, नम 1 को 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई करना है। मुझे बस ये लिखने का जरूरत है, मुझे बार बार इंटू टू लिखने का जरूरत नहीं। मैं बस नम 1 ओके दैट वाज राइट। तो यहाँ पे आप 9 देख सकते हैं, तो ये 3 टू द पावर 2 हो गया, तो 9 वैल्यू आ गया। तो ये हमारा था बेसिकली टू दी ऑपरेटर। अब ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये सब भी हो सकता है आपके लिए नया हो। बेसिकली ये इंक्रीमेंट करता है वो नंबर को बाय 1 से। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ लेट नम 1 एंड देन नम 2 में स्टोर कर दूँ नम प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 1 आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये एक प्रोसेस के बाद इंक्रीमेंट करता है। तो बिहाइंड द सीन्स ये बेसिकली ये करता है नम नम वन इक्वल्स टू नम प्लस 1। तो बिहाइंड द सीन्स ये बेसिकली ये करता है, ये होता है इसका वो बिहाइंड द सीन्स। ये अगर आप देखेंगे इसका कंपाइलर में, तो ये कुछ ऐसा कोड वहाँ पे किया हुआ होगा। तो ऐसे ही इसी तरीका से हमारा प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो चीज़ और होता है। तो अब हम आने वाला है कॉन्कैटिनेशंस पे। बेसिकली एडिंग टू वैल्यूज और वेरिएबल्स इनटू वन। तो टू वैल्यूज वाला पार्ट तो हमने पहले कवर कर लिया है। तो there are two ways you can do this. The first one is addition operator to concatenate, and the second was the interpolation. So first of all, we will going to talk about the easy one, the plus operator. So यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है, ये हमारा सेकंड नेम है। कॉन्कैटिनेट मीन्स उसका मतलब होता है कि दो को ऐड कर देना, यानी दो स्ट्रिंग या दो नंबर को एक में ऐड कर देना। तो हम इसे फुल नेम से ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक नंबर्स के फॉर्म में हम इसे ऐड कर देंगे, जैसे नंबर्स को हम लोग ने किया था एडिशन ऑपरेटर की मदद से। इसका आउटपुट आने वाला है विकांश में, कोई स्पेस नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं किया यहाँ पे। तो ये एक वे है जिससे आप ऐड कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को। और एक और वे है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, हमारे जितने टीम मेंबर्स है सब ये वे रिकमेंड करते हैं। ये मॉडर्न वे है और ये देखने में बहुत मतलब कि अगर नॉर्मल इंग्लिश में भी नॉर्मल इंग्लिश टाइप आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा तो ये बहुत रीडेबल है, मतलब ये लगेगा कि एकदम इंग्लिश टाइप है। तो अब इंटरपोलेशन का बात करते हैं। तो इंटरपोलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक डबल टिक्स लगाना है जो कि एस्केप की से नीचे होगा या तो टैब के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको डबल टिक्स यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रिंग जैसा कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम इज। अब आपको फर्स्ट नेम प्रिंट करना है तो, लेकिन यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यूज करने के लिए आपको डॉलर साइन का यूज करना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गया है इसका, यानी ये मैं वेरिएबल का नेम यूज कर रहा हूँ। और आप कह सकते हैं रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम इज दिस एंड लास्ट नेम इज एल। ये मॉडर्न वे है राइटिंग के लिए। जैसा आप देख सकते हैं पढ़ने में बहुत ही आसान है, एक डॉलर साइन के अलावा बाकी सब बहुत ही ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। और मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आउटपुट है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम इज विक्रांत एंड लास्ट नेम इज सिंह। सो ये तरीका है, इसे हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। बहुत ही फैंसी वर्ड है लेकिन काम बहुत ही आसान है ऐड करने का। तो ये तरीका जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ यूज करने के लिए, नया तरीका है।
तो ये हमारा कॉन्कैटिनेशन पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शंस पे। तो फंक्शंस ये बेसिकली आउटपुट लेता है, इनपुट लेता है, वो आपको आउटपुट रिटर्न करता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आपसे जरूर ये क्वेश्चन जरूर आपने बहुत बहुत ही आदमी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाई वी यूज फंक्शंस। तो maximum times I observed that the students do not have a clear answer, like they cannot tell the points. So जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है जिसके कारण हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले रीयूजेबिलिटी। तो एक आपका हमारा प्रोग्रामर्स का कॉन्सेप्ट आता है ड्राई, जिसे कहते हैं डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामर है, हम लोग अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। अगर हम लोग को कोई लाइंस ऑफ कोड का बार बार रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। ये नहीं है कि हम लोग सेम कोड बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग यूज करते हैं ड्राई कॉन्सेप्ट, हम लोग उसके लिए फंक्शन बनाते हैं। सो वी कैन जस्ट कॉल दैट फंक्शन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो आप जितना बार उसे कॉल करना चाहे आप कॉल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने 50 बार लिख रहे हैं, तो वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं होता जो करते हैं। जो भी करते हैं वो अपना आदत सुधार लीजिए, फंक्शन यूज करना चालू कीजिए। तो पहला रीजन हमारा ये है रीयूजेबिलिटी, और सेकंड रीजन है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन, आप अगर आप बुक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे हैं तो हाँ आप सही समझ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन उसी को कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे छोटा सा इंग्लिश में डेफिनेशन है, वो मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। वी नो द फंक्शन नेम एंड व्हाट द फंक्शन डज, बट वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल का बात करें, जैसे आपका फोन है, आपको फोन आपको पता है क्या करता है, कैसे करता है, और लेकिन आपको बिहाइंड द सीन्स नहीं पता ना कि उसका मैकेनिज्म क्या है। आपको पता है कि वो कहाँ से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन किस लिए यूज होता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स कैसे वर्क करता है ये तो आपको पता नहीं है। अगर हम चलिए कार का बात करते हैं, एक आपके पास कोई कार है, आपको कार चलाना आता है, आपको कार में घूमना आता है, लेकिन आपको पता थोड़ी इंजन में कैसे क्रैंक शाफ्ट वर्क कर रहे हैं, कैसे पिस्टन अप डाउन हो रहे हैं, कैसे पावर मिल रहा है कार को, ये सब तो नहीं पता है। तो ऐसा ही अगर हम जावास्क्रिप्ट के टर्म्स में बात करें तो हम अलर्ट फंक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। हमें पता है उसका नाम क्या है, उसे कॉल कैसे करना है, वो करता क्या है, लेकिन हम लोग को ये थोड़ी पता है वो बिहाइंड द सीन्स वर्क कैसे कर रहा है। वो जो लिखा हुआ है जो जावास्क्रिप्ट के नोड मॉड्यूल में और जो V8 इंजन है उसमें उसका डेफिनेशन थोड़ी जो लिखा हुआ है हम लोग को थोड़ी पता है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, हम लोग को बस उसका यूजेस पता है। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो यूजर है उन्हें उतना, अगर आप किसी को मोबाइल देने जाइएगा, अगर आप मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करते तो आप उसको मोबाइल का पूरा हिस्ट्री थोड़ी बताया जाएगा, ये ऐसे वर्क करता है, ये कीपैड में यहाँ ऐड क्लिक लिसनर लगा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद आपका नंबर रजिस्टर होगा, आप ये सब थोड़ी उसे बताइएगा, बस दाम बताइएगा, फीचर बताइएगा। तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ आप बताएंगे सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा, वो इंटरव्यूअर हो और कोई भी हो। एक बार ये बता देंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है फंक्शंस अच्छा से। तो ये दो मेन रीजन थे फंक्शंस के। तो आई होप दिस क्लियर्स इट अप व्हाई वी यूज फंक्शन। तो जैसा कि आपको सी और सी प्लस में पता है, आपको पहले उसका रिटर्न टाइप लिखना पड़ता था कि कैसा फंक्शन है। जैसे आप लिखते थे इंट फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, यहाँ पे आप देते थे ब्रैकेट्स जिसमें आप पैरामीटर पास करते थे, फिर आप रिटर्न टाइप रिटर्न लिखते थे। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता था कि रिटर्न टाइप क्या है। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको ये सब बताने का जरूरत नहीं है। जस्ट एज द वेरिएबल्स यू डोंट हैव टू डिफाइन what the return type is going to be. It can be number, it can be boolean, it can be string. तो उसको जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान वे प्रोवाइड करता है। आपको बस एंड टू एंड कुछ नहीं लिखना, आपको बस फंक्शन लिखना है, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो मैं फंक्शन का नाम से हेलो लिख देता हूँ। उसके बाद आपको एक दो ब्रैकेट प्रोवाइड करना है जिसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। फिर आपको फंक्शन का बॉडी बनाना है, उसके बाद आपको रिटर्न करना है। चलिए मैं हेलो रिटर्न करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ। ये फंक्शन जो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट को बताता है कि एक फंक्शन है। ये जो से हेलो आप देख सकते हैं, ये ये आपका फंक्शन का नाम है। ये जो यहाँ पे आप ब्रैकेट देख रहे हैं, यहाँ पे आप पास कर सकते हैं कोई भी पैरामीटर। मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, ए प्लस, ये हमारा पैरामीटर हो गया। और ये जो देख रहे हैं जो कर्ली ब्रेसेस है, ये फंक्शन के बॉडी है। और ये रिटर्न टाइप, ये चीज, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो लाइन है ये आपका रिटर्न होगा।
तो ये है फंक्शंस के बॉडी और ये सब के बारे में। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करने के बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो हाँ, आप जैसा देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? याद कीजिए, फंक्शंस बनाने और एग्जीक्यूट करने में तीन चीज मेन होते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना। हमने फंक्शन को कॉल थोड़े किया, हमने फंक्शन को इन्वोक ही नहीं किया, तो वो इन्वोक कैसे होगा? तो उसे इन्वोक करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और जो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। आर्गुमेंट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अब तक आपको, आप सबको मेरा नाम तो जरूर याद हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एक आर्गुमेंट देके, और मैं इसे रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन जैसा कि प्रोग्राम किया गया है वैसा ही वर्क कर रहा है। So this is how we define, declare and invoke a function in JavaScript. So ये जो आपने देखा ये बेसिक फंक्शन है, और ये पैरामीटराइज फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका सिंपल बेसिक फंक्शन है, और अगर आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं तो उसे पैरामीटराइज फंक्शन कहते हैं। तो ये जहाँ यहाँ जितना स्लाइड्स में लिखा हुआ मैंने आपको सब बता दिया उसमें से। तो ये हमारा एक पैरामीटराइज फंक्शन है, ये भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं num1 और num2 दो पैरामीटर पास हुआ है। देखिए आपको शायद इसमें हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। num1 num2 मैं वैल्यू पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है पैरामीटर में और आर्गुमेंट में कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको कंफ्यूजन आज क्लियर ही कर देता हूँ। ये जब आप फंक्शन बनाने टाइम जब आप ये लिखते हैं num1 और num2, इससे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। जब फंक्शन आप डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं, जब आप ये लिखते हैं num1 एंड num2, तो इसे आप पैरामीटर कहते हैं। लेकिन जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं और आप वैल्यू पास करते हैं, इसे कहते हैं आर्गुमेंट। तो मैंने एक डेफिनेशन भी कहीं पे पढ़ा था, जिससे कहते थे कि दी आर्गुमेंट इज कॉल्ड द रियल पैरामीटर ऑफ दैट फंक्शन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम आप आर्गुमेंट पास करते हैं, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आप पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, फंक्शन वर्किंग है परफेक्टली, कोई अगर सिंटैक्स एरर ना हो तो या जैसा आप देख सकते हैं मैंने नाम को गलत कर दिया है, हमने पास कर, ओके। तो आप देख सकते हैं जैसा फंक्शन को प्रोग्राम किया गया है वैसा ही फंक्शन ने आउटपुट दिया है। तो कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा आप सबको, इतना तो है। अगर किसी को इशू है तो आप पूछ सकते हैं बाद में व्हाट्सएप चैट सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया आपका पैरामीटराइज फंक्शन। अब हम बात करेंगे फैट एरो फंक्शन के लिए। अच्छा, अगर आपने जावा पढ़ा हुआ है तो जावा में एक टर्म होता है जिससे हम लोग कहते हैं इंटरफेस। तो आप इंटरफेस में एक चीज होता है जिसे आप कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अच्छा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन अगर आपने लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है तो फैट एरो फंक्शन आपको बहुत ही सिमिलर लगेगा उसके कंपैरिजन में। फैट एरो फंक्शन बेसिकली शॉर्ट वे है राइट करने के लिए, एक शॉर्ट तरीका है फंक्शन राइट करने के लिए। जैसे आपने आप फंक्शन इतना दिखा, ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है फैट एरो फंक्शन के मदद से। सो बेसिकली ये लैम्डा एक्सप्रेशन जैसा है। तो मैं लैम्डा के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग शायद थर्ड सेमेस्टर में है, तो जावा हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर में था, तो आप उसे इग्नोर कीजिए। तो फैट एरो फंक्शन बेसिकली शॉर्ट वे है राइट करने के लिए फंक्शन को। तो ये ES6 से बाद आया। ES6 बेसिकली जावा का अपडेट है, और ये ES6 के बाद ये फंक्शंस आए थे हमारे पास, फैट एरो फंक्शन। तो सेम फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा फैट एरो के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको इक्वल्स टू लिखना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस पास करने हैं, आपका कर्ली नॉर्मल ब्रैकेट पास करने हैं, उसके बाद आपको पैरामीटर पास करना है। ये हमारा फैट एरो का सिंबल है, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन साइन। इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस आपको रिटर्न कर देना है, जो भी आप रिटर्न कर सकते हैं। मुझे यही चाहिए, यही वैल्यू। और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो मैं सम को कॉल करूँगा।
कंसोल क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 3। तो ये कितना शॉर्ट तरीका, अगर आप ऊपर से कंपेयर करेंगे तो कितना शॉर्ट तरीका है लिखने का, नहीं मतलब आप 3 लाइन्स ऑफ कोड से 1 लाइन ऑफ कोड में आ गए। और जो कि शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि ये इक्वल्स टू ये क्या है, ये तो बहुत हार्ड है, मैं तो नॉर्मल फंक्शन यूज करूंगा। ट्रस्ट नहीं, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने इसे यूज करना चालू किया ये फिर मतलब एक लाइफ का हिस्सा बन गया, जावा कोडिंग लाइफ का हिस्सा बन गया। मतलब बहुत ही आसान है। कॉल बैक फंक्शन आप मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये लगेगा ये तो बहुत ही शॉर्ट और इफिशिएंट वे है राइट करने का, क्योंकि आप फंक्शन लिखते लिखते थक जाओगे उसमें। सो इट इज बेसिकली अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, फैट एरो फंक्शन। तो ये हो गया एक तरीका। अगर आप चाहें तो फंक्शन को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो आपने फंक्शन को देखा, मैं इसे चाहूँ तो वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। const sum इक्वल्स टू num1 num2, मैं यहाँ पे लेट इसको लेता हूँ, const कर देता हूँ, then fat arrow function return, सेम थिंग मुझे रिटर्न करना है। ये हमारा फंक्शन हो गया, और नम को कॉल करेंगे, नम में पास कर देंगे 1 2 पहले ऐसा, कंसोल क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट 3 है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि जब हम लोग नॉर्मल फंक्शन को, जब हम लोग एरो फैट एरो फंक्शन बना ही सकते हैं और हमें उसे एक वेरिएबल में स्टोर करने का क्या जरूरत है। बेसिकली इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको मान लीजिए कोई फंक्शन को रीराइट करना है, आपको उस फंक्शन को ओवरराइट करना है, आप चाहते हो उस फंक्शन का वैल्यू अलग हो जाए, तो आपको कुछ उतना फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं। आप सिंपल करेंगे नम इक्वल्स टू ब्रैकेट देन फैट एरो फंक्शन रिटर्न I am Lucifer, स्पेलिंग गलत हो सकता है, सॉरी। ओके, तो यहाँ मैंने इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। सी प्लस प्लस में आप लोग ने ओवरराइड ओवरलोडिंग ऐसा जरूर पढ़ा होगा। तो ओवरराइड बेसिकली हम लोग कोई फंक्शन को उसके फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं, मतलब उसको रीराइट कर देते हैं, बेसिकली आप ये समझ लीजिए। क्या लगता है मैं जब से कॉल करूंगा तो कौन सा कॉल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सी प्लस प्लस इन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गड़बड़ हो गया है, और वो गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल कर दिया इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम लूसीफर। तो ये बेसिकली एक अच्छा तरीका है जिससे आप उस फंक्शन को रीराइट कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, ना कि आपको फिर से पूरा फंक्शन डिफाइन करना पड़े। तो इसलिए हम लोग फंक्शन को एक स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। तो ये एक तरीका है जो कि अच्छा था बताना, ताकि आपको बाद में हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मन वैसे यूज कीजिए। अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट में। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आप एक यूजर को देना चाहते हैं, यूजर से आप कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए यूजर ने इनपुट नहीं दिया, तो आप ये थोड़ी चाहेंगे कि आपका वेबसाइट क्रैश हो जाए। नहीं, मैं आपने इनपुट नहीं दिया, आई एम क्रैशिंग दिस वेबसाइट, यू डोंट वांट दैट, राइट? सो यू कैन ऑल्सो गिव अ default argument. So for example, function say my name. I need a new keyboard, that's for sure. So यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का पैरामीटर मांगा है और आर्गुमेंट मांगा है। तो अगर जो फंक्शन जब कॉल हुआ, जब यूजर ने हमें कुछ इनपुट नहीं दिया, तो हम यहाँ पे सिंपल अननोन पास कर देंगे। रिटर्न console.log hello प्लस नहीं, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसे कॉल करेंगे से माय नेम। पहले मैं कुछ नॉर्मल पास कर देता हूँ, लेट्स से अनीश। अगर मैं रन करता हूँ तो
यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसा फंक्शन कोडेड है वैसा है, लेकिन मान लीजिए अनीश को मन नहीं किया फंक्शन मतलब वैल्यू पास करने का, अनीश ने कहा छोड़ो ना क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू नहीं दूंगा, देखते हैं डिफॉल्ट क्या होता है। तो उस केस में आपका जो डिफॉल्ट आर्गूमेंट है जो यहाँ पे अननोन है ये कॉल हो जाएगा, hello unknown. So it is a way to secure that your function does not crash your website. तो एक तरीका है जिससे आपका वेबसाइट सिक्योर है और क्रैश नहीं हो, बेसिकली रोबस्ट हो जाए। ये नहीं कि एक अगर किसी ने एक इनपुट नहीं दिया तो आपका वेबसाइट ही क्रैश हो जाए, तो उसके लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट बहुत ही काम का चीज़ है। तो ये हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट कवर हो चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना क्लियर हो। सी और सी प्लस प्लस वाले बच्चे तो सोच रहे होंगे क्या भैया बच्चा वाला चीज पढ़ा रहा है, ये सब तो मैंने अभी पढ़ा है, मैंने कब खत्म कर चुका है। तो हाँ टेंशन लीजिए, थोड़ा आगे ये सब हार्ड होने वाला है, अभी आपको लग रहा है। जब आप डॉम मैनिपुलेशन और मैप रिड्यूस फिल्टर ये सब पढ़ेंगे तो आप लोग को लगेगा कि हाँ भैया ने जो भी पढ़ाया काम का पढ़ाया। तो अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। बेसिकली जैसा भी कंडीशन ट्रू होगा उस हिसाब से आप आउटपुट देंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम लोग टेम्परेचर का वेरिएबल बनाते हैं, टेम्परेचर, और हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से, फ्रॉम इंटर टेम्परेचर। ये हमारा एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और अगर इफ टेम्प इज लेस देन इक्वल्स टू 18 नहीं नो 16, तो हम लोग कंसोल पे प्रिंट करेंगे कि कोल्ड है भाई। 16 से कम टेम्परेचर मेल है तो ठंडा ही होता है, तो कोल्ड एल्स कंसोल मतलब। तो ये मैंने आप सिंपल इफ एल्स बना लिया है। if this condition is true this is going to be run, if the condition is be false then the else statement will else block of code will going to be run. सो अगर ये सही है तो ये चलेगा, अगर ये गलत है ये चलेगा, या तो ये या तो वो। अब इससे ज्यादा मैं और हिंदी में आपको नहीं बता सकता हूँ। तो ये है ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है और मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आज का टेम्परेचर है मेरे यहाँ 27 अगर देते हैं तो 27 तो देख सकते हैं हॉट वेदर में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डाला था 27, तो 27 यहाँ पे टेम्परेचर चेक होगा, क्या टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, नहीं टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 16, नो कंडीशन इज फॉल्स, सो एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो अगर मैं यहाँ पे 16 पास करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड आउटपुट आया। तो यहाँ फिर से चेक हुआ इफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर यहाँ पे ये सेव हुआ जो मैंने इनपुट किया उसमें से ये टेम्प चेंज हुआ। फिर यहाँ पे टेम्प यहाँ पे रेफरेंस है तो टेम्परेचर में यहाँ पे 16 था तो 16 इज ग्रेटर देन, नो कंडीशन फॉल्स, लेकिन इक्वल्स टू यस कंडीशन ट्रू, दैट्स वाई ये एग्जीक्यूट हो गया और ये एल्स ब्लॉक नहीं चला। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था। इसी तरीका से हमारे पास इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट भी है। तो अगर मान लीजिए आपको एक रूम टेम्परेचर पे प्रिंट करना है, लाइक अगर टेम्परेचर है टेम्प इज इक्वल्स टू 24, तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे रूम टेम्परेचर। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो मैं 24 लिखूँ, आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर। सो एल्स इफ बेसिकली अगर आप और कंडीशन डालना है, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको एक कंडीशन है, आपको 2-3 कंडीशन चेक करना है। जैसा कि आप कार है, अगर कार चलाते हैं तो उसमें आप देखिएगा 80 किलोमीटर के बाद बीप आता है और 120 किलोमीटर के बाद वो बीप कंटिन्यू हो जाता है। तो वहाँ पे भी स्टेटमेंट होगा इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 60 बीप वन टाइम, एंड इफ एल्स इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 120 बीप कंटिन्यू। सो वहाँ भी इस टाइप का कोडिंग होगा। तो बेसिकली मल्टीपल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए आप एल्स इफ यूज करते हैं। तो ये हमारा 3 तरीका का हो गया स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम लोग स्विच के तरफ शिफ्ट होंगे। स्विच बेसिकली सेम चीज है, लेकिन स्विच अगर आप कम्पिटिटिव कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो याद रखिएगा स्विच स्लाइटली फास्टर होता है। तो कम्पिटिटिव कोडिंग में तो 1 मिली सेकेंड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं तो आप स्विच को प्रेफर दे सकते हैं, स्विच थोड़ा सा फास्ट होता है। तो मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ। कॉन्स्ट मैं वही टेम्परेचर वाला एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे स्विच लिखूंगा, यहाँ पे तो मैं कंडीशन पास करूंगा
कंडीशन है मेरा टेम्परेचर कर्ली बेसिस केस 1, अगर टेम्परेचर 18 है तो कंसोल डॉट लॉग परफेक्ट टेम्परेचर 18 डिग्री मान लो तो परफेक्ट टेम्परेचर है। केस 24 कंसोल डॉट लॉग रूम टेम्परेचर, ये हो गया। अब एक चीज और इसमें होता है, जैसे एक केस देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का रेफरेंस यहाँ पे पास हुआ, रेफरेंस से फिर इसने वैल्यूज को चेक किया, यानी यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे मेरा कंडीशन 18 है तो यहाँ पे केस 18 यहाँ पे से ये चेक होगा क्या इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू होगा तो ये आपका रन हो जाएगा। और अगर आपका टेम्परेचर 24 है तो यहाँ पे रेफरेंस से चेक करेगा क्या उसका वैल्यू 24 है, हाँ उसका वैल्यू 24 है तो फिर आपका ये रन हो जाएगा। और इसी तरीके से डिफॉल्ट होता है, अगर आपका सारा कंडीशन फॉल्स है तो ये डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आई एम डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, परफेक्ट टेम्परेचर भी रन हुआ, रूम टेम्परेचर भी रन हुआ, हे एम डिफॉल्ट भी रन हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इफ एल्स इफ कंडीशन में ऐसा तो नहीं होता है, इसे ये रन करके खत्म कर देना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे आपको एक कीवर्ड होता है जिसे ब्रेक कहते हैं, आपको हर केस के बाद ब्रेक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो ये कार के एक्सीलेटर की तरह कंटिन्यू सबको ठोकते चला जाएगा, ब्रेक नहीं लेगा। तो आपको ब्रेक कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा जिससे ये ब्रेक लो। डिफॉल्ट के आगे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसे टेस्ट करने के लिए आपको फिर से सेम आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही चीज प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक हो गया, इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ गया है, तो ब्रेक यूज करना जरूरी है। तो ये हमारे दूसरे टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो टर्नरी ऑपरेटर सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है चेक करने के लिए कि सबसे शॉर्टेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता है, जिससे आप एकदम छोटा सा चीज चेक कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर आज का 18 है, क्या जो टेम्प है मेरा ग्रेटर देन 18 है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, ट्रू। यहाँ पे ये आपका जो सच, जो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला वैल्यू आपका यूज होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये वाला वैल्यू यूज होगा। तो मैं यहाँ पे और अच्छा से लिख देता हूँ, नो टेम्प इज हाई, अगर कंडीशन ट्रू है तो यस टेम्प इज 18, यस टेम्प इज अबव 18। तो ये हमारा सबसे छोटा कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गया। मैं टेम्प का वैल्यू भी ले लूंगा, ओके, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो टेम्प का वैल्यू है 20। तो अगर मुझे कंसोल डॉट लॉग भी करना पड़ेगा वैल्यू, तो जैसा कि आप देख तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया टेम्प नाम का, जिसमें मैंने वैल्यू 20 असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट टेम्प नाम का कंडीशनल जो मेरा वेरिएबल है उसमें मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। तो यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे क्या टेम्प मेरा 18 से बड़ा है, तो हाँ ये ट्रू था, तो ये वाला चीज असाइन हो गया इस वेरिएबल में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टेम्प प्रिंट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और अगर टेम्परेचर का वैल्यू 16 होता तो जो रॉन्ग वाला इनपुट है वो रन हो जाता, यानी जो फॉल्स वाला, यानी जो फॉल्स वाला कंडीशन जो फेल हो जाता है वो वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर था, टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर। तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपने पहले ही पढ़ लिए। और अब हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये भी आप सबको पता ही होगा, फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये सबका यूज़ क्या है। तो
सबसे पहले हमारा एक आता है डबल इक्वल्स टू। तो ये भी मैंने इफ ब्लॉक पहले पढ़ाया ताकि ये पढ़ाना आप लोग के लिए आसान हो जाए, ताकि मैं इफ ब्लॉक का यूज कर सकूं। तो मैं यहाँ पे एक एज लूंगा। चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वोटिंग प्रोग्राम। वोटिंग, तो यहाँ पे हम लोग एक वोटिंग का प्रोग्राम बनाया है, अभी बनाया नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वोटिंग के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो एज होना चाहिए आपको, 18 होना चाहिए, 18 के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एज ही होता है ना। तो चलिए जो हमारा व्यक्ति है उनका एज 18 साल है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग यस बडी यू कैन वोट। तो ये हमारा जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये होगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग ये करेंगे यू आर स्टिल अ चाइल्ड ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का साइन मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे मैसेज रन करूंगा तो आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आएगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है जो कि इंट के कारण आया है। As a heavy C++ user, this can happen to you also. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंडीशन ट्रू था तो ये चीज़ प्रिंट हो गया है। और अब हम इक्वल्स टू साइन का बात करेंगे। इसको आप भूल जाइए, अब वोटिंग प्रोग्राम हम लोग का खत्म हो गया। तो समझ लीजिए अगर आपका एज इक्वल है तो मैं इसे स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल इक्वल्स टू साइन है, ये चेक करेगा कि क्या ये दोनों इक्वल है। अगर मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रिंट होगा यस बट यू कैन वोट। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या ये सही बात है? आप स्ट्रिंग को कोई नंबर से कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, और ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है आपके कोई भी प्रोजेक्ट में। तो इसी को दूर करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें ट्रिपल इक्वल्स टू दिया है। तो ये बेसिकली क्या करता है, या वैल्यू भी चेक करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है। तो अगर मैं इसे फिर से रन करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ we are using triple equals to, ये फोर नाम का कुछ नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ब्लॉक प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये चेक कर रहा है वैल्यू एज वेल एज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप अलग है, इसलिए कंडीशन फॉल्स होकर आपका सेकंड में आ गया। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये दोनों आपने समझ लिया, ग्रेटर देन समझ लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू समझ लिया। हम लोग नॉट इक्वल टू समझेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आपको दो वैल्यू चेक करना है क्या वो इसके इक्वल है कि नहीं। तो जैसा कि मुझे चेक करना है क्या मैं मेरा एज में भाई जैसा है क्या अलग है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है अगर हम लोग ट्विंस ना हो तो माई वो एज, उसका एज 18 है, रियल एज नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिससे आपको चेक करना पड़ सकता है कि क्या ये दोनों इक्वल है और इक्वल नहीं है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ आपको चेक करना पड़ जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वल टू नहीं है, तो हमारा एल्स ब्लॉक इक्वल टू है, तो हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर गड़बड़ कर दी। माइनर मिस्टेक्स हैपन because we are all are human beings of course। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हम लोग ने यही कंडीशन चेक किया था दोनों इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए तब ये रन होता, लेकिन दोनों इक्वल्स टू था तो ये रन नहीं हुआ। तो ये बेसिकली नॉट इक्वल्स टू साइन, नॉट इक्वल्स टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब हमारे पास आता है ये वही चीज़ आ गई, आपका दोनों डेटा टाइप और वो दोनों चेक करेगा, नॉट इक्वल्स टू तो ये वही चीज़ है। और ग्रेटर देन साइन आपको पता ही होगा, जैसा कि मैंने बता चुका है एज वाले एग्जाम्पल में। लेस देन इक्वल्स टू भी आपको समझ ही गए होंगे। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं।
तो अगर आपको एक ही इफ कंडीशन में अगर आपको दो चीज चेक करना है, तो एक ही इफ कंडीशन में, जैसे कि आपका एज, जैसे एक हम बना लेते हैं age = 20। मान लीजिए आप कोई बिहार का कोई एग्जाम है, जैसे कोई टीचर का एग्जाम है, इसमें आपको चेक करना है कि टीचर का एज हमारा 20 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 20 ज्यादा होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में आपको एक चीज यहाँ पे आपको फायदेमंद होगा एंड ऑपरेटर। बेसिकली ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा। एज शुड बी ग्रेटर देन 20 एंड एज शुड बी लेस देन 50। कंट्रोल डॉट लॉग, यस, he can, he/she can apply। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक साथ दो कंडीशन ट्रू कर रहा हूँ। तो एंड का खासियत होता है कि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे कल ब्लॉक भी बना लेता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग आई एम इन एल्स ब्लॉक। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों कंडीशन हमारे ट्रू हैं, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। जैसा देख सकते हैं, यस सी कैन अप्लाई, बट अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इस एंड के लिए होना दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों कंडीशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एल्स ब्लॉक में आ गए। और हमारे पास इसी तरीका से होता है एक और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आपका और ऑपरेटर काम करेगा। यानी अगर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन उसके बाद भी हमारा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बस ट्रू होना चाहिए। तो ये आप उस सिचुएशन में डाल सकते हैं जहाँ आपके पास 3-4 कंडीशन है, लेकिन अगर तीनों में से एक, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे आप कोई गिटहब पे मान लीजिए लॉगिन करना चाहते हैं, नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप या तो फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, या तो गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, और या तो आप अपने हाँ, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप दोनों में से एक से भी लॉगिन किया तो आपको गिटहब यूज करने का परमिशन मिल जाए। तो ऐसा केस में आप इसका और का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से एक बिट ट्रू हो तो आपको एक्सेस मिल जाए। तो ये क्लियर है। ये नॉट ऑपरेटर बेसिकली रिवर्स कर देता है, अगर आपका ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ड्राई। तो इसका आंसर आप अगर चैट बॉक्स इनेबल है तो उसमें दे सकते हैं, वरना आप लोग सबको समझ आ ही गया होगा। अब हमारे पास अगला टॉपिक है लूप्स, और लूप्स में हम लोग 5 टाइप के लूप्स पढ़ने वाले हैं, और ये मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, तो अनीश, आर यू देयर? अभी हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, कल करेंगे। तो ठीक है। किसी को कुछ पूछना है